today I want to start a teaching और आज मैं शिक्षा से शुरुआत करूंगा about the armor of God. और वो शिक्षा जो है वो है परमेश्वर के जो हथियार है उसकी विषय। So I want you to listen to the word of God very carefully. हम चाहते हैं कि बहुत सावधानी से आप परमेश्वर के वचन को जो है देखें And we're going to look at it very systematically. और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हम इसे देखेंगे। The first thing we're going to look at is why the armor is so crucial. और सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि क्यों हथियारों की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है Why the armor is so crucial. That's the first thing. और क्यों जो हथियार है उनकी जरूरत इतनी महत्वपूर्ण है। Yes, go with me to the book of Ephesians chapter 6 please. और मेरे साथ आप जा सकते हैं इफिसियों की किताब उसके 6 And I'm अध्याय reading from the verse 10 onwards from the amplified version. और पास्टर जी जो है वो एम्पलीफाइड वर्जन से अंग्रेजी में पढ़ेंगे। Verse 10 says, in conclusion, be strong in the Lord. Draw your strength from Him and be empowered. How? Through your union with Him and in the power of His boundless might. और वचन 10 में लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Verse 11, put on the whole armor of God, for His precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier, so that you may be able to successfully stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. और वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Yeah, notice over here it says, और ध्यान दे यहाँ पर लिखा है we are to be strong in the Lord by relying on Him for strength and power. और हमें जो है प्रभु के सामर्थ में जो है स्थिर खड़े रहना है उसकी शक्ति और सामर्थ को How? ग्रहण करने के द्वारा। How do we receive that strength? कैसे वो ताकत हमें मिलती है? It is through our connection with Him. और ये हमारा जो संबंध है उसके साथ उसके जरिए। Somebody say connection. कोई कहे जो हमारा संबंध है। You see, if a branch is not connected to the tree, अगर एक जो डाली जो है वो दाखलता से अगर जुड़ी नहीं है या पेड़ से जुड़ी नहीं it है will not carry that power. It will not carry that strength. तो वो ताकत वो जो शक्ति है उसे वो लेकर नहीं चलेगी। How many of you are listening right now? कितने लोग सुन The रहे Bible हैं? says the branch will be withered और बाइबल कहती है डालियां सूख जाएगी and it will dry out. There'll be no और fruit. वो It will सूख just जाएंगे fall out. उनमें कोई फल नहीं होगा वो गिर जाएगी टूटकर। So in this way, और इस प्रकार से we Christians, the main first thing is our connection and our union with God. और हम जो मसीह है हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हमारा जो संबंध हमारी एकता जीवते परमेश्वर के साथ। You know, many of us have seen और हम में से कई लोगों ने देखा है how a heavily armed soldier goes into battle. और कैसे एक हथियारबंद जो सैनिक होता है सिपाही होता है वो लड़ाई के लिए जाता है। He has so many types of weapons and gadgets all over him. और हम देखते हैं सिपाही या सैनिक के ऊपर जो है हर प्रकार के जो है तरह तरह के गैजेट्स और तरह तरह के उपकरण और यंत्र होते हैं। In the same way, और ठीक उसी प्रकार a से Christian needs to be equipped with spiritual armor to fight the enemy. एक मसीह जो है उसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो है आत्मिक हथियारों से लैस होना चाहिए। I want you to be listening to this message very मैं carefully. चाहता हूँ कि बहुत सावधानी से आप इस संदेश को सुने। As human beings, और मनुष्य होने के नाते we too fight constant battles. और हम भी निरंतर युद्ध की जो है स्थिति में होते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं The battles of negative thoughts, और ये लड़ाई लड़ते हैं हम नकारात्मक विचारों से battles with lust. और लड़ाई जो है वासना से। Now people don't agree to these things. और कुछ लोग इन बातों से सहमत नहीं होते They will not tell you about these things. और वो इन सारी बातों के बारे में आपको नहीं बोलेंगे। But the truth is, internally they are fighting battles. लेकिन सच में अगर देखा जाए तो और ये अनंत काल की जैसे मानो लड़ाई जो है वो चलती है They are fighting battles in their lives. और वो अपने जीवन में लड़ाइयों को लड़ रहे हैं Some people are battling fear. और कुछ लोग डर से लड़ रहे हैं। They cannot tell you, वो आपको बताएंगे नहीं but they are fighting this battle. लेकिन वो इन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। In offices, they are fighting battles with difficult people. और हम देखते हैं कि दफ्तरों में वो कठिन प्रकार के लोगों से लड़ रहे हैं You see, everybody needs the armor of और God. हर किसी को जो है परमेश्वर के हथियारों की जरूरत है। Somebody say amen. और कोई कहे You आमीन। and I, we need this armor of God. आपको और मुझे इन हथियारों की जरूरत है Please listen carefully. और बहुत सावधानी से सुनो। Apostle Paul said something very powerful. प्रेरित पौलुस ने बहुत सामर्थी बात कही He said that this battle that you and I fight every day, और ये लड़ाई जो आप और मैं हर दिन लड़ते हैं it's not a physical battle. ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, It is a spiritual ये battle. आत्मिक लड़ाई है। How many of you is listening right now? कितने लोग इस बात को Go सुन with रहे me हैं? to the book of Ephesians 6:18 now. और अब इफिसियों मेरे साथ निकाले 6 अध्याय उसके 18 वचन में It हम says, जाएंगे। for we do not wrestle against flesh and blood. वो कहता है कि हम जो है
लहू और मांस से नहीं लड़ते, but we wrestle against principalities, against powers, rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. और वचन 12 में लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। So this battle is not a physical battle. सो ये लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, It is a spiritual battle. ये आत्मिक लड़ाई है। How many of you are listening right now? कितने लोग इस बात को सुन I रहे हैं? want you to understand this truth very हम carefully. चाहते हैं कि इस सत्य को बहुत सावधानी से समझे। You know, Paul the apostle, he had a powerful revelation of the spiritual mysteries. और प्रेरित पौलुस जो था उसे बहुत ही जबरदस्त सामर्थशाली प्रकाशन दिया गया था आत्मिक जगत की रहस्यों का, He knew some secrets that can really help us. और वो कुछ राज की बातें जानता था जो सच में हमारी मदद कर सकती He wrote in 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. और फिर उसने दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय वचन 11 में लिखा था, He showed us how to overcome the devil. और उसने हमें दिखाया कि कैसे हम शैतान पर विजय पाएं। He said that Satan cannot take advantage of us और वो कहता है कि शैतान जो है हमारा फायदा नहीं उठाए if we are not ignorant of his schemes. अगर हम उसके जो है चालों को अनदेखा नहीं In other करते। words, और दूसरे if we शब्दों know the schemes, the strategies of the devil, then we can overcome the devil. और अगर हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं, अगर हम शैतान की चाल को जानते हैं, तो हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। Please listen very carefully. और बहुत सावधानी से In इसे the समझें। Bible, बाइबल में You know, there are some negative stories written down. बहुत सारी जगह पर जो है कुछ नकारात्मक कहानी लिखी गई। For example, उदाहरण के the लिए, fall of Samson, और हम देखते हैं शिमशोन का गिरना how he fell. और कैसे वो गिरा। And sometimes we wonder why these stories are written down. और कुछ समय हम सोचते हैं कि क्यों ये सारी कहानियां बाइबल में Why हैं, would the Bible tell us of a person falling down? और क्यों बाइबल आखिर में हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएगा जो गिर गया, Why does the Bible tell us about Peter's denial? और क्यों बाइबल हमें पतरस के जो है नाकारने के बारे में बताता है। Usually in this world, people like success stories. और आमतौर से इस दुनिया में लोगों को जो है सफलता की कहानी पसंद है, He started poor, और उन्होंने गरीबी से शुरुआत he की, ended rich. और उनका जो है समाप्ति जो है एक धनवान व्यक्ति के रूप Wow, में wow, हुआ। wow. ओ कितनी अच्छी बात है, वाह Everybody वाह likes to वाह। clap. और हर किसी को तालियां But बजाना who अच्छा wants लगता to है। hear a story of a man who was all powerful but ended as a failure? और लेकिन कौन ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनना चाहेगा जो बहुत शक्तिशाली था लेकिन जिसकी समाप्ति एक बहुत ही दुख के साथ खत्म हुई। Samson. शिमशोन वो व्यक्ति Who था। wants to hear of a story who was a mighty apostle who walked on water but ended up denying Jesus? और कौन आखिर ऐसे Peter. व्यक्ति की कहानी सुनना चाहेगा जो एक सामर्थ्य प्रेरित बना और जो पानी पर चला लेकिन अंत में उसने जो है अपने प्रभु को 3 बार जो है उसने इनकार किया। Who वो wants- व्यक्ति कौन था? पतरस। Who wants to hear about a man called Lot who slept with his own daughters? और It's in we cannot understand these things. और कौन आखिर में लूत जैसे मनुष्य के बारे में सुनना चाहेगा जो नशे में धुत होकर अपनी ही बेटियों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। These things are written in the Bible ये सारी बातें बाइबल में लिखी to गई show us how the devil operates, हमें दिखाने के लिए कि कैसे शैतान काम करता है, to expose the strategies, the schemes of the devil. और शैतान की युक्तियों को उसके चालों का जो है पर्दाफाश करने That's की। why we must read the word. और इसीलिए हमें वचन को पढ़ना The Bible चाहिए। says that these things were written as examples for us. और बाइबल कहते कि ये सारी बातें हमारे उदाहरण के लिए लिखी गई है। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हो? These are not कलीसिया? just good stories. ये कुछ अच्छी कहानियां ही नहीं है, These were written for our admonishment. These were written for our instruction. और ये सारी बातें लिखी गई हमें सूचना देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। How these people fell. और कैसे ये लोग गिर गए। Satan does not have anything new. शैतान के पास कुछ नया नहीं है, He has the same old dirty tricks. और उसके पास वही पुरानी चालें हैं। How many of you listening right now? कितने लोग सुन He रहे only हैं? changes the names of those और वो tricks. केवल अपनी जो है हरकतों के नाम बदल देता है, And he brands them as new और things. वो उनको नई बातें जो है दिखाता है। But if we understand these things, लेकिन अगर हम इन बातों को we समझें, can avoid those same mistakes in our relationships, in our marriages, in our workplace. Somebody say amen. तो हम उन गलतियों को जो है हम टाल सकते हैं हमारे शादीशुदा जीवन में, हमारे काम करने के स्थान पर। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं There's मेरी one more बात? thing right now. एक और बात मैं The बताना best चाहता हूँ। part is we have the Holy Spirit. सबसे अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Now what does he do? अब पवित्र आत्मा The क्या Holy करता है? Spirit, he reveals
the schemes, the plans of the enemy to us. और पवित्र आत्मा हमें जो है दुश्मन के जो है योजनाओं को, उसकी युक्तियों को हम पे प्रकट करता है, Through visions, दर्शनों के द्वारा through dreams, और सपनों के through द्वारा revelations, और प्रकाशनों के through द्वारा prophetic और words. भविष्यवाणी के शब्दों के द्वारा। One day, एक दिन a mother came to me एक माँ जो है मेरे पास आई and said, Pastor, और उन्होंने कहा, पास्टर, I want to share with you something very powerful. मैं बहुत ही जबरदस्त बात आपके साथ बांटना चाहती हूँ। You will not believe this. Listen to this. आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात पर। She said, the Lord woke me up at 3 o'clock in और the उन्होंने night कहा, प्रभु ने मुझे सुबह के 3 बजे उठाया and said, pray. और मुझसे कहा कि तू प्रार्थना Her कर। son is in a foreign nation. उनका बेटा विदेश में है And she said she did not know why the Holy Spirit woke her up. और उन्होंने कहा उन्हें पता नहीं था कि क्यों पवित्र आत्मा ने उनको इतनी सुबह उठाया। 3 o'clock, this lady gets up सुबह के 3 बजे ये महिला उठती है, and she's praying. वो प्रार्थना कर रही है She's praying with tears. और वो आंसू बहाकर प्रार्थना कर She रही है। prayed for half an hour, उसने आधे घंटे के लिए प्रार्थना 45 minutes. 45 मिनट के लिए And after प्रार्थना 1 hour, 15 minutes, और 1.25 घंटे के बाद उसने the burden lifted up उसका जो बोझ था वो उठा लिया and है she slept peacefully. और वो शांति से सो गई। In the morning, सुबह के she समय gets a call from the US. और उन्हें यूएस से एक फोन आता है Her son is on the line. और उनका बेटा लाइन पर है And he said, Mama, और बेटा माँ से कहता है, माँ were you praying for me? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी? She was scared और उन्हें डर, वो घबरा because गई this boy was shivering and crying on the क्योंकि ये phone. जो बेटा था वो कांप रहा था, वो रो रहा था फोन पर। He said, Mama, उसने कहा, माँ, my car left the highway और मेरा कार जो है हाईवे से चला गया and fell into a canal, और एक बड़े से कनाल में गिर गया, but nothing happened. लेकिन कुछ हुआ नहीं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? So the mother started saying, Son, are you really telling me the truth? Are you okay? और माँ ने कहा कि क्या बेटे आप मुझे सच में ये बात बता रहे हो? क्या आप सब ठीक ठाक He हो? said, Mama, nothing कहा- happened even to the car. और उन्होंने कहा वो कार जो नहर में गिर गई उससे भी कुछ नहीं हुआ Because क्योंकि he said, I slept at the wheel. मैं जो हूँ जो है गाड़ी चलाते मैं सो गया, But he said, slowly the car stopped for some reason. लेकिन कुछ कारणवश कार अपने आप धीरे से रुक गई। He said, if I would have gone to the right, I would have hit a trailer. अगर मैं दाहिनी ओर जाता तो मैं एक बड़े से ट्रेलर, एक बड़े से वाहन से टकरा No, जाता। Mama, you were praying for me. लेकिन नहीं, मेरी माँ आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। You see, church, कली से आप देखो, that's how the Holy Spirit exposes the works of the enemy. और इस Hallelujah. तरह से जो है पवित्र आत्मा दुश्मन के कार्यों को जो है उसका पर्दाफाश करता You है। might have had similar experiences. शायद आपने इसी प्रकार के कुछ जो है बातों को देखा होगा। Thank God for the Holy Spirit. और धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। Can I have a good amen right now? और क्या मैं एक अच्छी आमीन कह सकता हूँ? Hallelujah. हालेलुया। You see, the Holy Spirit, many times when I prophesy to और people बहुत से बार जब मैं लोगों पर भविष्यवाणी करता हूँ through the gifts, और वरदानों के the द्वारा, Holy Spirit exposes the schemes of the devil. और पवित्र आत्मा शैतान के कामों को जो है, उनकी युक्तियों को जो है उसकी पोल खोलता है। Right now, the Holy Spirit said the spirit of death is leaving. और इस समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि मृत्यु का आत्मा छोड़कर We जा रहा don't know, है। हमें नहीं पता, but the Holy Spirit will show. लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा। How many of you listening right now? और कितने लोग सुन The रहे हैं? Holy Spirit gives us His gifts, और पवित्र आत्मा हमें उसका वरदान देता है, not only to uplift us, not only to edify और us, ना केवल हमारी उन्नति के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, but to expose the schemes, to expose the strategies and the deceits of the devil. Hallelujah. और Come on, शैतान somebody. के चालों को, उसकी युक्तियों Hallelujah. को, उसकी सारी जो है चालाकियों को जो है दिखाने के लिए हमें पवित्र आत्मा मदद Lift your करता है। hands and say, Holy Spirit, come. और अपने हाथों को उठाकर कहे, पवित्र If you आत्मा can really pray it right और now, अगर आपने सच में प्रार्थना की है whatever the devil has planned against you, और जो भी शैतान ने आपके खिलाफ योजना बनाई let है it be scattered in 7 directions. और वो तितर बितर हो Pray, जाए, pray. 7 दिशाओं में प्रार्थना करे, Somebody प्रार्थना cry करे, out and say, Holy Spirit, और कोई come. चिल्लाए और कहे, पवित्र आत्मा। Hallelujah. Hallelujah. I prophesy you will have a testimony tomorrow और morning. मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि Yes. कल की सुबह आपके पास गवाही Yes, somebody shout hallelujah. होगी। और कोई कहे I हालेलुया, said hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हो? There was a family. और एक परिवार था, There was a family that wrote to me और एक परिवार था जिसने हमें खत लिखा from a different state in India. और भारत के एक अलग राज्य से, And they said like this. और उन्होंने इस प्रकार से There लिखा, was a group of people और कुछ लोगों का दल था that threatened to beat one of the family members. जिन्होंने धमकी दी थी कि वो परिवार के किसी एक को जो है पीटेंगे, मारेंगे। And they said that tonight
they will come on a particular night. और उन्होंने कहा कि एक विशेष दिन और विशेष रात को वो आएंगे That night, और उस रात like you, आपके they समान cried out to the Holy उन्होंने Spirit. पवित्र आत्मा को पुकारा। And you know what? और आपको मालूम है क्या, In that group, उस ग्रुप में there was infighting between them. उन्हीं के बीच आपस में लड़ाई हुई Instead of beating this man, और इस मनुष्य को पीटने की they बजाय started beating up each other. उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू May कर it दिया। happen to you. और ऐसा आपके May साथ your हो। enemies against you be scattered. और आपके दुश्मन Lift your जो hands है वो तितर बितर and say, होकर भाग Holy जाए। Spirit, come. और अपने हाथों को उठाकर Begin to कहें, pray, पवित्र begin to आत्मा, pray, begin to प्रार्थना करना शुरू करें, pray. प्रार्थना Everyone करना who's शुरू करें। praying right now, और हर कोई जो प्रार्थना your कर रहा है enemies will fight with each और other. आपके दुश्मन एक दूसरे से लड़ेंगे। Oh, somebody shout, Spirit of the living और God. कोई चिल्लाए, जीवते परमेश्वर का आत्मा, Expose the devil, oh और God. शैतान की पोल खोल दे In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम Somebody में। shout hallelujah. और कोई कहे हालेलुया। You see, the Holy Spirit has the ability और आप देखते हो पवित्र आत्मा में वो क्षमता है to see and hear the secret plans of the enemy, कि वो दुश्मन के गहरी राज की बातों को देख सकता है Which- और उसे वो प्रकट कर which सकता है, frustrates the devil. जो उस दुश्मन को जो है निराश कर देता है। I mean, are you listening right क्या now? आप सुन रहे हो? It frustrates the devil. और वो शैतान को निराश कर देता How do है। you know that, Pastor? आपको कैसे मालूम है If you पास्टर? read 2 Kings chapter 6, अगर आप दूसरा राजा उसके वचन 6 अध्याय 6 को पढ़ेंगे, the Bible says बाइबल कहती है Syria was engaged in warfare against Israel. और सीरिया जो देश है वहां के लोग इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, But every time the Syrian army, they laid in wait for the Israelites. लेकिन हर एक बार जब भी जो है जो सीरिया के लोग या सीरिया की सेना इजराइल पर जो है हमला करना बोलना The चाहती थी, Israelites did not pass through that area. तो तब ऐसा होता था कि इजराइल के लोग जो है कभी भी उस जगह से नहीं जाते थे जहां उनके दुश्मन घात So लगा the कर बैठे। Syrian king sought to find out who was the spy among them. और इसीलिए आराम का जो राजा था, सीरिया का जो राजा था, उसने जो है अपने लोगों को बुलाया और वो जानना चाहता था कि हमारे बीच में भेदिया कौन है। One of the servants replied and said, और तब एक कर्मचारी ने जो है जवाब दिया इस प्रकार से, nobody is spying. और वो उसने कहा कि कोई भी यहाँ से जो है आपकी बातें दूसरों को नहीं But बताता। Elisha, the prophet who is in Israel, लेकिन एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता जो इजराइल में he है, tells the king of the words that you speak in your bedroom. और वो इजराइल के राजा को उस स्थान की चर्चा करके बताता है, भले ही तू इसकी चर्चा अपने शयन कक्षा में क्यों ना You करे। see, this is why the devil hates the prophetic. और देखिए इसीलिए जो शैतान है वो भविष्यवाणी की वरदान से जो है नफरत करता That's है। why many people they will talk against the prophetic. और इसीलिए बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता और उन भविष्यवाणियों के खिलाफ बात करते हैं। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे There is हैं? a true prophetic, then there's a fake also. और हम देखते हैं कि अगर सच्ची में भविष्यवाणी की जाती है तो झूठी भविष्यवाणी पर होती है। How many of you listening right now? और कितने लोग सुन रहे हैं? See, as God's people, और परमेश्वर के लोग होने we के have a नाते divine spy who can expose the enemy plans, and he's the और Holy Spirit. हमारे पास एक अलौकिक Hallelujah. गुप्तचर है Yes. जो दुश्मन के सारे राज हमको बता देगा, और वो गुप्तचर और कोई नहीं, वो पवित्र आत्मा है। The enemy may be, plotting against your loved ones, against your family members. और भले ही दुश्मन आपके प्रियजन या आपके परिवार के लोगों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहा है, But if you open your ears to listen to the Holy अगर आप Spirit, पवित्र आत्मा के लिए अपने कानों को खुला करें, He will disclose the schemes of the enemy. और वो शैतान के सारे दुश्मन के सारे जो है बातें गहरी बातें And आपको He, not बताएगा। only that, और ना केवल ऐसा करेगा, He will provide a way out for you. और समस्या से बाहर निकालने का रास्ता भी वो आपको Lift your बताएगा। hands and say, Lord, open my ears. और अपने हाथों को उठाकर कहे, Yes. पवित्र आत्मा मेरे कान Tonight, खोल। may the Lord show you many things. और आज की Hallelujah. रात प्रभु आपको Hey. बहुत सारी बातें बताए, In the mighty name of Jesus. और प्रभु यीशु के In सामर्थ्य the नाम name of में, Jesus. प्रभु यीशु के Lift नाम your में, hands at home and begin और to अपने say, Holy हाथों को Spirit, उठाकर अपने घरों में प्रार्थना open करें और my कहे, eyes. पवित्र आत्मा मेरी आंखें खोल, open my ears. मेरे कानों को खोल, Show me the works of the enemy. और मुझे दुश्मन के कामों को दिखा। In the mighty name of Jesus. और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम Today, में, something big is going to happen in और your कुछ life. आज कुछ तो बड़ा आपके जीवन में होने Yes, वाला your है, ears are opening to the और Holy आपके Spirit. कान जो है पवित्र आत्मा के लिए Your खुल रहे हैं, eyes are opening to the things of और God. आपकी आंखें जो है परमेश्वर की बातों के लिए खुल रहे हैं। Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस We समय? have one thing to do, only one thing और to do. एक बात जो है केवल हमें करना है, You and I, as soldiers of Christ, और आप और मैं मसीह के जो है सिपाही बनकर, our only responsibility is हमारी केवल एकमात्र जो जिम्मेदारी है, we have to be strong in the Lord और and in the power of His हमें might. प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत होना है। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। Lift your hand and say, Lord, I और will be अपने हाथों strong को in उठाकर you. कहे, प्रभु मैं आप में बहुत ही बलवंत होना चाहता हूँ। Pray for your family right अपने now. परिवार के लिए प्रार्थना Spirit करें, of God, move upon every home and family that और is परमेश्वर connected. के आत्मा हर एक परिवार पर जो हमारे साथ जुड़ा है, आप उन पर मंडराए।
As a Christian, और मसीह होने के नाते we are all soldiers in a spiritual battle. हम सभी आत्मिक लड़ाई के एक सिपाही है। Now, in my years of ministry as a pastor, और पास्टर होने के नाते जो मेरे सालों की सेवकाई है, I have observed there are 4 different types of soldiers. Write this down. और मैंने इस चीज को देखा है कि 4 प्रकार के सिपाही होते हैं। आप इसे लिख सकते हैं। Understanding these categories will help us to understand, how we can grow in our faith. और इन श्रेणियों को समझने से हमें मदद मिलती है कि कैसे हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं। The first category of the soldiers, पहली श्रेणी जो सिपाहियों की है वो है, they don't know anything about the armor of God. उन्हें परमेश्वर के हथियारों के बारे में कुछ भी पता नहीं They होता are constantly attacked by the devil, और निरंतर दुश्मन उन पर हमला करता है and they also attack other Christians और वो दूसरे भी मसीहों पर हमला करता है through criticism, और आलोचना के जरिए gossip, और चुगली करने के जरिए complaints. और शिकायतें करने के Little जरिए, things upset them. और ये सारी छोटी बातें उनको निराश करती है। These soldiers are vulnerable and ineffective in their spiritual warfare. और ये जो सिपाही होते हैं वो अपनी आत्मिक लड़ाई में बिल्कुल जो है असुरक्षित होते हैं। I want you to listen carefully. मैं चाहता हूँ कि बहुत The सावधानी से second सुनें। category of soldiers, और सिपाहियों का जो दूसरी श्रेणी है, they are aware of the armor of God, but they don't wear the armor वो of God. परमेश्वर के हथियारों को जानते हैं लेकिन वो उन हथियारों को धारण नहीं करते। They have some victory in their lives, उनके जीवन में कुछ विजय उनको प्राप्त होता है, but they are still vulnerable to the schemes of the enemy. लेकिन फिर भी जो चाल जो युक्तियां हैं शैतान की उसके प्रति वो खुले होते हैं, So असुरक्षित what होते you हैं। must understand is सो आपको क्या समझने की that जरूरत है? having the knowledge of the armor of God is not enough. You have to use it. परमेश्वर के हथियार का ज्ञान होना काफी नहीं है, आपको उसका इस्तेमाल भी करना How है। many understanding right now? कितने लोग समझ रहे Just हैं क्या having a क्या है? knowledge, head knowledge is not enough. बौद्धिक ज्ञान होना काफी नहीं है। The third category, और तीसरी जो श्रेणी है, they are soldiers who wear some of the armor, not the whole armor. और ऐसे कुछ सिपाही हैं जो कुछ हथियार तो धारण करते हैं लेकिन कुछ हथियार धारण नहीं करते, Some areas of their life are exposed to the devil. और उनके जीवन के कुछ जो है क्षेत्र शैतान के लिए खुले रहते हैं। And the fourth category और जो चौथा जो श्रेणी है, is the Christian, is the soldier who wears the whole armor of God. और वो ऐसे जो है सिपाही है जो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं। I want you to tell you right मैं now, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। this type of soldier, और इस प्रकार के जो सिपाही होते हैं they have peace and rest. उनके पास शांति होती है, आराम होता है। Somebody shout और hallelujah. कोई कहे I want to tell हालेलुया। everyone those are watching. और मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ जो If हमें you देख want रहे हैं, to move into the rest of God, अगर आप परमेश्वर के विश्राम में आना चाहते हैं you have to put on the whole armor of और God. आपको पूरे परमेश्वर के हथियारों को धारण करना है। Somebody say, I'm receiving right और कोई now. कहे मैं इसे प्राप्त करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Such soldiers, they come out of the battle victorious. और ऐसे जो सिपाही होते हैं वो लड़ाई से विजयी बनकर आते हैं। Somebody say, praise the Lord. कोई कहे प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। I want to ask you today, और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, where do you stand in your spiritual warfare? आपके आत्मिक लड़ाई में आज आप कहाँ खड़े हो? Are you a soldier who's constantly attacked and attacking others? क्या आप वो सिपाही हो जो दूसरों पर लगातार हमला करता है? Are you a soldier who's knows about the armor but you never wear the armor of God? और क्या आप ऐसे सिपाही हो जिसको हथियारों के बारे में पता तो है लेकिन वो कभी हथियारों को जो है धारण नहीं Or करता? maybe you're a soldier who's partially protected and still vulnerable to the attack of और the शायद enemy. आप ऐसे सिपाही हो जो आधा जो है सुरक्षित है क्योंकि आपने आधे हथियार धारण कर लिए और आपका आधा जीवन अभी भी जो है असुरक्षित है। And the last category और अंतिम जो श्रेणी है, is, are you a soldier who's saying, yes, I want to put on the whole armor of God? क्या आप वो सिपाही हो जो कह रहे हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के पूरे हथियारों को बांधना चाहता हूँ? Today, आज we're going to pray. हम आपके लिए प्रार्थना I करेंगे। don't want you to pray like an actor. मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी अभिनेता की समान आप प्रार्थना I करें। want you to pray like a warrior. हम चाहते हैं कि एक लड़ाई एक योद्धा के समान आप I प्रार्थना want करें। I want to somebody in your home to shout hallelujah.